स्टार्ट सम फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज से पहले हमें देख लेने चाहिए। फर्स्ट वन एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ एन टर्म्स है। फर्स्ट एन टर्म्स का सम अगर किसी एपी का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, या फिर एस एन के लिए ही हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। एल इज द लास्ट टर्म हियर। एल यहाँ पर क्या है? लास्ट टर्म, या ए एन भी इसको बोल सकते हो आप। सो दिस इज लास्ट टर्म और nth टर्म विच इज गिवन। देन ए एन कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ एस एन। So an is equal to Sn minus Sn minus 1। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लें। मान लेते हैं कि मुझे A10 निकालना है, तो A10 इज इक्वल टू S10 सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। अगर मुझे A10 निकालना है तो 10 टर्म्स का सम और उसमें से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? A10। So we can find the nth term by using some formulas. Next, if three numbers A, B and C are in AP, then अगर तीन नंबर हैं A, B और C, वो तीनों AP में हैं, तो मिडल जो नंबर होता है उसका ट्वाइस, दैट इज ट्वाइस ऑफ B, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। फर्स्ट और लास्ट वाले के सम के इक्वल होता है बीच वाले का ट्वाइस। सो 2b इज इक्वल टू a प्लस c। लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सो 4 पार्ट्स आर देयर। दिस इज द गिवन एपी एंड वी हैव टू फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स. In this we have to find up to 12 terms, in this up to 100 terms, up to 11 terms. So let us see part 1. Given AP is 2, 7, 12 and so on. So here A is equal to, A means first term is 2, common difference D is equal to 7 minus 2, it is equal to 5, second term minus first term 5, and S10 we have to find. So now we have the formula Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. So S10 is equal to 10 by 2 into bracket 2a. A is 2 plus n minus 1. N minus 1 will, 10 minus 1 will be 9 into d is 5. So 10 by 2 is 5. 2 into 2 4. 9 into 5 45. So 5 into 49, 4 plus 45, it will become 49. So 5 into 49, 245. This will be our answer. Next, part 2. Given AP is minus 37, minus 33, minus 29 and so on. So here A is equal to minus 37 and D is equal to minus 33 minus of 37. So minus will become plus here. So D is equal to minus 33 plus 37. So it is positive 4. This is D. And we have to find S12. Now again same formula. S12 is equal to 12 by 2 into bracket 2a. 2 into a is minus 37. Plus n minus 1, that is if we find 12th term, so it is 11 into d is 4. So 12 by 2 is 6. 37 minus 37 into 2, it is minus 74. 11 into 4, it will become 44. Now 6 into bracket minus is 74 and positive we have 44. So minus 30 is left.
So 6 multiply minus 30, answer is minus 180. So this will be the answer for second part. Next, part 3. Given AP is 0.6, 1.7, 2.8 and so on. Then here A is equal to, first term is 0.6, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, और D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो इट इज 1.1. एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड S100, सम ऑफ 100 टर्म्स, 100 टर्म्स का सम हमें निकालना है. सो अगेन S100 विल बी 100/2 into bracket 2a, a is 0.6 plus 99d, because 100 minus 1, that is 99d, d is 1.1. So 100/2 is 50, 2 into 0.6 it will become 1.2 plus 99 into 1.1 it will become 108.9. So it is equal to 50, then into bracket 108.9 and 1.2. When we add we get 110.1. So after multiplication we get 5505.0. So after decimal 0 is of no use. Decimal के बाद 0 का कोई use नहीं होता. Therefore 5505. This will be our answer for part 3. Next, part 4. Given AP is 1/15, 1/12, 1/10 and so on. So here A is, first term is 1/15, D is equal to 1/12 minus 1/15, second term minus first term. So their LCM is 30. I have LCM will be 60 and I have taken 120 here, so it will not make any difference. So there any multiple, so common multiple I have taken 120. To make this 120 we have to multiply by 10, so 10 minus, and 15 8s are 120 minus 8, so 2/120 is equal to 1/60. So directly you can take LCM to be 60 and then you will get 1/60 directly here. S11 we have to find. S11. Now Sn is equal to n/2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Same formula. Now again we'll put the values. For n we have 11. S11 is equal to 11/2 into bracket 2 into a is 1/15 plus 10 into d is 1/6, 1/60. So ये 0 से 0 cancel हो गई. Then we get 11/2 into bracket 2/15 plus 1/6. Again इनका common multiple I have taken 60 here. LCM will be I think 30. So 60 अगर लेंगे तो 15 4s are 4, 2 4s are 8, then 6 10s are, so it is 10. So 18/60. Then it cancel it by 2, we get 9/30. Cancel by 3 again, we get 3/10. So 11/2 into 3/10, so it is 33/20. This is answer for part 4. Let us see next question. Question number 2. Find the sums given below. Now 7 plus this plus this plus this, clearly they are having an they are the terms of an AP. So we have to find Sn and the last term is given here. हमें Sn निकालना है और सब में लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स हैं. तो पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर हम Sn निकालेंगे. So this is the given AP part 1. For this A is 7, first term, L is 84, L means last term is 84. Common difference D, A2 minus A1 again,
So 10 whole 1 by 2 minus 7, 21 by 2 minus 7, so it will be 7 by 2. ये आ गया कॉमन डिफरेंस. नाउ लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP. मान लेते हैं कि 84 क्या है, nth टर्म है. सो an इज इक्वल टू, an और l एक ही चीज होती है. l या फिर an nth टर्म या फिर लास्ट टर्म एक ही बात है. सो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. लास्ट टर्म इज 84 इज इक्वल टू a दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 7 बाई 2. ये 7 इधर आके माइनस हो गया, तो 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 बाई 2. देन ये 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, सो ये आएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, n इज इक्वल टू 23. नाउ वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l. अब की बार हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सो वी हैव टू फाइंड 23 सम ऑफ 23 टर्म्स बिकॉज n यहाँ पर कितना आ गया 23. सो एस एन इज इक्वल टू 23 बाई 2 इंटू ब्रैकेट a 7 प्लस l लास्ट टर्म इज 84. सो इट इज 23 बाई 2 इंटू 91. सो 91 23 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2093 by 2, and converting it in mixed fraction we get 1046 whole 1 by 2. So this is answer for part 1. Let us see next part. Part 2, AP is 34, 32, 30 and so on up to 10. So again first term is 34, D is 32 minus 34, it is minus 2, and L last term is 10. Again let n is the nth 10 is the nth term of this AP. इसको an मान लेंगे, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फिर से 10 इज इक्वल टू a दैट इज 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 2. ये 34 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 10 में से नेगेटिव माइनस होकर के माइनस 24 बच गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2. ये माइनस 2 इधर जाके माइनस 24 को डिवाइड करेगा तो ये 12 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1. ये माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया तो n इज इक्वल टू 13. n 13 आ गया. नाउ एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है. सो 13 बाई 2 इंटू ब्रैकेट 34 प्लस 10 फर्स्ट और लास्ट टर्म. सो 13 बाई 2 इंटू 44. सो 13 44 इसको 2 से कैंसिल कर देंगे हम, 44 को 2 से, तो ये आ गया 13 इंटू 22, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 286. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 2. नेक्स्ट पार्ट 3, -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a is -5, last term is -230, and common difference -8 minus of -5, -8 minus of -5, it will become +5. So common difference is -3. Now again let this last term is nth term, therefore formula for nth term is a plus n minus 1 into d. ये हमने लास्ट टर्म रख दी -230 इज इक्वल टू a -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -3. ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बच गया, माइनस के 225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3. ये -3 डिवीजन में आ जाएगा, -225 को डिवाइड करेंगे -3 से तो ये आएगा 75. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75. ये -1 उधर जाके प्लस हो गया, सो n इज इक्वल टू 76. तो ये तो हमें पता चल गया कि कितनी टर्म्स हैं इसमें, 76 टर्म्स हैं. अब 76 टर्म्स का सम निकाल देंगे. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l, सेम फॉर्मूला, n बाई 2 दैट इज 76 बाई 2 इंटू ब्रैकेट a
इज -5 प्लस -230. सो 76/2 ये हो गया 38 मल्टीप्लाइड बाय -235. दोनों नेगेटिव थे, ऐड हो गए, माइनस के 235 हो गए. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है -8930. So this is the answer for part 3. Let us see next. Question number 3. So S16 is equal to n/2, that is 16/2 into bracket first plus last term. Then 8 into 55, ये 16/2 8 हो गया, 5 और 50 ये होगा 55. मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 440. दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट 2. गिवन A is 7, A13 is 35 and we have to find D and S13. Again an is equal to a plus n minus 1 into d. So A13 given है तो A13 is equal to a plus n minus 1 into d, that is a plus 12d. So 35 is equal to 7 plus 12d. ये 35 इधर आके माइनस हो गया, is equal to 12d. So 28 is equal to 12d and d is equal to 28 by 12. तो ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे तो d क्या आ गया 7/3. Now Sn is equal to n/2 into bracket a plus l. S13 हमें पता है तो क्योंकि S13 निकालना है और A13 हमें पता है तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी इसमें. So S13 is equal to n/2 into bracket a plus A13. So n/2, n is 13/2 into bracket a7 and A13 is 35. तो ये हो गया 13/2, 7 plus 35 42. Then it is, ये 2 से कैंसिल होकर 21 आ जाएगा. So 13 into 21 and the answer is 273. Next, part 3. Given A12 is 37. A12 given है, D given है, A निकालना है और S12 निकालना है. तो पहले AN का फॉर्मूला लगाओ. AN is equal to A plus n minus 1 into D. So A12 is equal to A plus 12 minus 1 into D. A12 हो गया 37 is equal to A plus, ये हो जाएगा 11 into 3. 11 into 3 33. ये 33 इधर आके माइनस हो जाएगा 37 में से. So A is equal to 4. Now S12 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो. S12 is equal to n/2 into bracket A plus A12. तो ये हो गया 12/2 into bracket 4 plus 37. Then 12/2 6 हो गया, 4 plus 37 41. When we multiply we get 246. 6 into 41, it is 246. This is answer for part 3. Next, part 4. Given A3 is 15, S10 is 125 and we have to find D and A10. A3 गिवन है और S10 गिवन है. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि एक इक्वेशन तो हम यहाँ से बनाएंगे A3 से, और वो इक्वेशन किस में बनेगी, A और D में. 2 वेरिएबल रहेंगे A और D और एक इक्वेशन बन जाएगी. ऐसे ही एक इक्वेशन A और D की S10 से बना लेंगे और फिर उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. सो नाउ सी, A3 is equal to A plus 2D, A plus 2D और वो कितना है 15. सो 15 is equal to A plus 2D. ये हो गई इक्वेशन 1. नाउ Sn का फॉर्मूला लगाओ. Sn is equal to n/2 into bracket 2A plus n minus 1 into D. Then S10 is equal to 10/2 into bracket 2A plus 10 minus 1 into D. तो ये हो गया S10 125, 10/2 5 हो गया. Then we have 2A plus 9D. Then ये 5 इस 125 को डिवीजन में चला जाएगा, कैंसिल करेगा तो ये आ गया 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D. ये होगी इक्वेशन 2. अब यहाँ पर 2A है, 9D है, यहाँ पर A और 2D है, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे. तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2. तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 की जगह आएगा 30. देन 2A, देन 2D को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4D. ये हो गई इक्वेशन 3. अब A का कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल हो गए. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 25 माइनस 30 तो ये आ गया -5. देन 2A माइनस 2A कैंसिल हो गए. 9D माइनस 4D ये आ गया 5D. तो D इज इक्वल टू -5/5 माइनस 1. D की वैल्यू क्या जाएगी -1. एलिमिनेशन मेथड हमने यूज़ किया है जो थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज़ किया हुआ है. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू वापस पुट कर देते हैं. सो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D की जगह पे हमने क्या रख दिया -1.
सो 15 इज इक्वल टू ए माइनस टू, ये माइनस टू इधर आके प्लस हो गया, ए इज इक्वल टू 17। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17, डी की वैल्यू आ गई है -1। एक आंसर तो यही हो गया था। अब हम A10 निकालेंगे। सो A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D, सो इट इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू डी इज -1, सो 17 minus 9, so A10 is equal to 8. This is answer for part 4. Next, part 5. Given D is equal to 5, S9 is equal to 75, and we have to find A and A9. Again, S9 is given. So let us use the formula for Sn. Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. तो जो हमें वैल्यू पता है वो रख देते हैं। S9 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। S9 हो गया 75, 9 बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 इंटू 5 40। ओके, अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा, 75 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू ब्रैकेट, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया हमने, ये 2 को कैंसिल करेगा तो a प्लस 20। अब इन दोनों को 3 से कैंसिल कर दो, ये 3 पे कैंसिल हो गया, ये भी 3 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3। सो 25 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट a प्लस 20। देन 25 इज इक्वल टू 3a प्लस 60, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। 3a इज इक्वल टू, ये वाला 60 इधर आके माइनस हो गया, 25 माइनस 60। सो a इज इक्वल टू माइनस 35, 25 माइनस 60 माइनस 35, और ये वाला 3 डिनोमिनेटर में, सो माइनस 35 बाय 3। नाउ an is equal to a plus n minus 1 into d. So a9 is equal to a plus 8d. a minus 35 by 3 plus 8 into d is 5. तो ये हो गया माइनस 35 बाई 3 प्लस 40। एलसीएम आ गया 3 माइनस 35 प्लस यहाँ हो जाएगा 120। तो ये आंसर आ गया इज इक्वल टू 85 बाय 3। माइनस के 35 थे प्लस के 120, तो ये क्या बचेंगे 85 बाय 3। सो दिस इज a9। तो हमारे 2 आंसर होंगे। एक आंसर हो गया a माइनस 35 बाई 3 और दूसरा a9 85 बाय 3। Now part 6. Part 6 again. Given a is 2, d is 8, sn is 90. We have to find n and an. अब इसमें देखो, sn का फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn 90 गिवन है। अब की बार हमें n का नहीं पता है, तो n बाई 2 एज इट इज इंटू ब्रैकेट 2a, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 8। नाउ 90 इज इक्वल टू n, यहाँ से फिर से 2 कॉमन निकाल दिया, इस ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन निकाल के ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 90 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2 प्लस ये 4n मल्टीप्लाई और 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर -4। देन 90 इज इक्वल टू n, देन इंटू ब्रैकेट व्हाट इज लेफ्ट 4n माइनस 2, क्योंकि यहाँ प्लस के 2 थे माइनस के 4 थे, तो ये -2 बचेगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। इन दोनों को उठा के अगर हम 90 को उठा के अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर माइनस 2n। ये 90 उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमने सीखे थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। या तो इसमें से 2 पहले कॉमन ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सम आना चाहिए -2 और प्रोडक्ट आना चाहिए -360। तो ये हमने स्प्लिट कर दिया इसको, माइनस का 20 और प्लस का 18 में। सो 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 360 आएगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। देन इन दोनों में से 4n कॉमन, यहाँ पे बच गया n माइनस 2 n माइनस 5। इन दोनों में से प्लस 18 कॉमन, यहाँ बचेगा n माइनस यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से n माइनस 5 कॉमन, ये 4n बच गया, ये प्लस 18 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर आ गए, या तो ये 0 के इक्वल होगा, n माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 4n प्लस 18 इक्वल टू 0 होगा। अगर n माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और अगर ये 0 है तो n इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 4 आएगा। n इज इक्वल टू माइनस 18 बाई 4, इट इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। और n कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, ना तो n नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो गया,
और n की क्या वैल्यू बच गई 5, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। नाउ n आ गया 5, अब हमें an निकालना है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n 5 आया तो a 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। सो 2 प्लस 4 इंटू डी 8 है, तो 2 प्लस 32 इज 30। सो an हमारा 34 आ गया और n आ गया 5। तो ये दोनों आंसर हैं पार्ट 6 के। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7। गिवन a is equal to 8, an is equal to 62, sn is equal to 210, and we have to find n and d। तो sn गिवन है, sn का फॉर्मूला लगाते हैं। sn is equal to n by 2 into bracket a plus an, that is last term is also given, तो a plus l, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। सो sn is 210 is equal to n by 2 into bracket a plus l, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 8 plus 62, तो ये हो गया 210 इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 70 से इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, 73 जा 210 और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2 6, सो n इज इक्वल टू 6। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सो an इज 62 इज इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन 6 माइनस वन इंटू डी। सो 62 माइनस 8, ये वाला 8 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू ये 5d। सो 62 माइनस 8 54 इज इक्वल टू 5d एंड d इज इक्वल टू 54 बाय 5, ये 5 डिवीजन में चला जाएगा। सो d इज इक्वल टू 54 बाय 5, n इज इक्वल टू 6। दीज आर द आंसर्स फॉर पार्ट 7। लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 8। गिवन an इज इक्वल टू 4, an गिवन है 4, d is 2, sn is minus 14, and we have to find n and a. So let us start with the formula for an, because d we know. So by putting the value of n, by putting the value of an, we'll get some relation between n and a. So an is equal to a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला होता है an 4 है इज इक्वल टू a हमें पता नहीं है प्लस n माइनस वन इंटू डी हमें पता है 2, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू a प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2। नाउ a प्लस 2n इज इक्वल टू, ये वाला 2 उधर जाके प्लस हो गया 6, ये वाला 2 इधर 4 के साथ आके प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी इन टर्म्स ऑफ n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये 2n उधर जाके माइनस हो गया। गिव इक्वेशन नंबर 1, ये हमने रिलेशन निकाल लिया a और n का। नाउ sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल, फिर से वही वैल्यू जो है वो पुट करेंगे हम। sn 14 गिवन है, माइनस 14 गिवन है, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट a फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, प्लस an दैट इज लास्ट टर्म वो हमें पता है 4, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट a प्लस 4, देन माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 6 माइनस 2n, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 6 माइनस 2n प्लस 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू रख दी a की। ओके, नाउ माइनस 28 प्लस n इंटू ब्रैकेट, अब ये 6 और 4 ऐड हो गए, ये 10 हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 10, माइनस 2n प्लस 10। नाउ माइनस 28 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n, इन दोनों को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया 2n स्क्वायर, ये नेगेटिव हो गया माइनस 10n, माइनस 28 पहले से ही था, इज इक्वल टू 0। अब फिर से इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 7n और प्लस 2n में स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था, तो ये फैक्टर आ जाएंगे n माइनस 7 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 या फिर n प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर n माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो n 7 हो गया, और n प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो n माइनस 2 हो गया। n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। हाउएवर n कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, देयरफॉर n इज 7, और n की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो इसको हम वापस इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी
सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, n की जगह पे 7 रख दिया, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 14, सो a इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये दो आंसर फिर से, n हो गया 7 और a हो गया माइनस 8। लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 9। गिवन a is equal to 3, n is equal to 8, s means sn, it is equal to 192, and we have to find d. So sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d, क्योंकि यहाँ पर an नहीं दिया हुआ है इसलिए a plus l वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। Then sn 192 is equal to n 8 by 2, n given है, 2a 2 into 3 because a is given, plus 8 minus 1 into d. So 192 is equal to 8 by 2 4 हो गया, ये 8 by 2 4 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, ये हो गया 70। ये 4 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा तो 192 को 4 से डिवाइड करेंगे 48 आएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस 70, ये बच गया। ये 6 इधर आके माइनस हो गया 48 में से तो 42 बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 70 बच गया। देन d इज इक्वल टू, ये 7 डिवाइड करेगा 42 को, d इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा आंसर आ गया, सॉरी d इज इक्वल टू 6, तो आंसर क्या आ गया 6, 7 6 42। डी ही निकालना था तो इसमें एक ही टर्म थी जो निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट, पार्ट 10। गिवन L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, S stands for SN, and there are total 9 terms and we have to find A. Total 9 terms, it means n is given 9. So Sn is equal to n by 2 into bracket A plus L because last term is given. Sn 144 is equal to n, total 9 terms, so n is 9, 9 by 2 into bracket A plus L is 28. Now ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा इधर, तो 16 और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू A प्लस 28, सो ये होगा 32 इज इक्वल टू A प्लस 28, ये 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, A इज इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।